as root test. These two tests are uh, there are other tests also, but these two are some of the important tests and easy to comprehend. So we will begin with the root test. This is the most general statement of a root test, and in mostly books it is stated in a different way. It is stated as I have stated in corollary, but this is something this corollary too will follow from the theorem that we will just prove as a root test. And what this states, let's just look at the statement of this theorem first. Is suppose we have a sequence of real numbers, and obviously from this sequence we will form a series, and and if there is a real number and that real number is smaller than 1, and we have a natural number k, and with this given data we have this inequality. This is important inequality. It says that you take the nth root of the absolute values of the nth term of the series. This is, you may look at, this is nth root of absolute value of nth term. And if this nth root is bounded by this number, if this nth root is bounded by this number for all n bigger than or equal to k, you have terms of this sequence x1, x2, so on up to xk, then you will have xk plus 1, so on. It says that after certain stage, and the stage is this, if after this stage the nth roots of the absolute values of the terms of the sequence are bounded by this number r, where this r is a number which is smaller than 1, then the series summation xn will be absolutely convergent series. See, in comparison test हम क्या करते थे? Comparison test में हम nth root नहीं compare करते थे. ये kind of comparison है, but यहाँ nth roots जो हैं terms के, they must be uniformly bounded. Uniformly bounded means एक ही bound होना चाहिए. Comparison test में एक bound नहीं होता था. Comparison test में xn less than equal to yn होता था. Series के term से bounded, n के साथ change होता था. इसमें right hand side में जो आपका bound है r, वो fix है. तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो if you have such kind of setup, then this series will be absolutely convergent. And this was the situation when r was less than 1. And now if we have, instead of this in b part, if there is a number, natural number k, and if these nth roots of the absolute values of the terms of the sequence are greater than or equal to 1, if they are larger than 1 after certain stage, then the series is divergent. Let's first look at its proof. The question is absolute convergence है. अगर आपके पास ये जो nth roots हैं, तो nth roots bounded by a number, but bounded by which number? That number needs to be less than 1. और अगर ये greater than 1 है तो series divergent है, और less than के लिए convergent, absolutely convergent है. And remember what is absolute convergence? अगर if you have a series x n, और अगर इसके absolute values की जो series बनती है, if that series is convergent, then we say that the series summation xn is absolutely convergent. ये absolute convergence की definition है. तो that means हमें ये चीज show करनी है कि absolute values की जो series है a part के लिए, absolute values की जो series है वो convergent है. So we have this number r, this is given data that we have a real number,
and we have a natural number also, and such that the nth root of the nth root of the absolute value of nth term is less than or equal to r for all n bigger than or equal to k. So what it implies then, you take the nth power. If we take the nth power, then nth root will be cancelled out, and we will get this mod of xn will be less than or equal to r to power n for n bigger than or equal to k. So now what we have? We have this thing. Xn is less than or equal to r to power n, and this is true for every n greater than or equal to k. So this implies that if I begin from n equals to k to infinity, then mod of xn, I have this series. This is a series. It begins from k, and I have another series on the right hand side, which I must take r to power n greater than or equal to k, and the series that I have written on the right hand side, this series, this is a geometric series. This is a geometric series, and what information we have about geometric series, uh, and the common ratio here is r, and that common ratio is also less than 1, and hence we know that when in case of geometric series, when the common ratio r is less than 1, it is smaller than 1, then this is convergent. So this series is convergent. So now we are in a position to apply the comparison test, because if you look at these two series, the terms of this first series, this one, are dominated by this terms of the geometric series by this inequality, and hence by comparison test, it follows that this series n from k to infinity mod of xn is convergent. This is convergent. And but see, I'm taking n from k to infinity, but our series starts from n from 1 to infinity. So what about other terms? When I write n from k to infinity, the series is convergent, but at the same time, this means that this sum, when I say that this is convergent, this means that this sum n from k to infinity is finite. Convergent बोलने का मतलब है कि this is a finite number. This is a finite real number. When it is convergent, it's a finite real number. तो अब ये finite real number है अगर आपके पास, तो इसमें एक और finite real number अगर आप ऐड करें, and that finite real number suppose it is x k minus 1, तो दो रियल नंबर्स का सम अगेन रियल नंबर होगा. तो इस तरह से चलते जाइए आप, तो फाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स आप इसमें ऐड कर लो x1 से लेकर k minus 1 तक, तो अगेन दिस सम इज गोइंग टू बी फाइनाइट. फाइनाइट बोलने का मतलब है लेस देन इंफिनिटी. So this is going to be finite. If this is going to be finite, that means now I can, what is this thing? This thing is a series which starts from 1 to n from 1 to infinity. Absolute value of xn is finite. It is finite means that it is convergent. It is finite means it is convergent, and hence it proves the part A. Is it okay? Any doubt in it? Will somebody respond? No, sir. So, okay then. So this is the part A. And you see the uh, powerful thing that helps us here is the comparison test. So comparison test you need to have. And for part B, we have this given data that after certain stage,
after the terms of the series, the nth root of the terms of the series is larger than or greater than or equal to 1. So what it implies now, when you have this thing, what it means that mod of x n is greater than or equal to 1 for all n greater than or equal to k. That means इसका मतलब आपके पास जो लिमिट होगी एक्स एन की, दिस कैन नॉट कन्वर्ज टू जीरो। लिमिट एक्स एन की जीरो को कन्वर्ज करेगी तो मॉडुलस कैन नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मॉडुलस आपके पास कहीं के जीरो के अराउंड होना चाहिए। तो अगर लिमिट एक्स एन जीरो को नहीं कन्वर्ज करती तो इसका मतलब आपके पास जो सीरीज है समेशन एक्स एन जो है इज नॉट कन्वर्जेंट, and hence that means it is divergent. You know why it is divergent? Because we have this necessary condition of nth term test, जिसको भी आप बोल सकते हो, कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है, if series is convergent, तो उस केस में आपके पास जो nth टर्म की लिमिट है तो वो जीरो होती है। लेकिन here we are, because of this inequality we गेट दिस इंफॉर्मेशन कि आपकी सीरीज जो है, सीरीज आपके पास सीरीज की nth टर्म्स की जो लिमिट है वो जीरो को कन्वर्ज नहीं कर रही है। तो जब जीरो को कन्वर्ज नहीं कर रही है, जीरो नहीं है, तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट this test, and this test is known as Cauchy root test. This test is known as a Cauchy root test, and the Cauchy root test की जो दूसरी फॉर्म है which is a corollary, तो दूसरी फॉर्म ये है जी इसकी, यू सी व्हाई इट इज सो। तो वो ये आपके पास कॉशी रूट टेस्ट की है। वहां आपने क्या रखा था, पीछे देखिएगा, यहाँ हमने आर रखा था, आर वाज अ नंबर जो बाउंड था, आर वाज अ बाउंड हियर, बट जो दूसरी फॉर्म है कॉशी रूट टेस्ट की, जो यूजुअली हम अप्लाई करेंगे, जो यूजुअली हमने एक्सरसाइजेस वगैरह करनी होगी, तो आप इसको अप्लाई करके कर सकते हैं। तो वो ये है कि अगर आपके पास सीरीज ऑफ रियल नंबर्स है, तो ये nth रूट्स की अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट यहाँ कंडीशन ये है, यहाँ एक ही कंडीशन, इसलिए ये वीक हो जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग कंडीशन इस पर रिक्वायर्ड है कि आपकी ये लिमिट मस्ट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट की जब भी आप बात करते हैं तो लिमिट या तो एग्जिस्ट करती है या एग्जिस्ट नहीं करती है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और अगर इस लिमिट की वैल्यू जो है, लेट इट बी आर, इफ दैट वैल्यू इज लेस देन 1, तो देन योर सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। वही पीछे भी हमने r लेस देन 1 था। और अगर ये लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट है। और एक और चीज अगर आप नोटिस करें तो दिस टेस्ट सेज नथिंग अबाउट व्हेन r इज 1। आप नोटिस कर रहे हैं ये कि जब r इक्वल टू 1 है तो corollary 2 सेज नथिंग, बट आप जो मैंने थ्योरम 1 स्टेट करी, थ्योरम 1 सेज एवरीथिंग अबाउट r, r इक्वल टू 1, r ये सिंपली कहती है कि r नीड्स टू बी लेस देन 1, और ग्रेटर देन 1 जब भी आपके पास होगा तो आपकी सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट होगी। तो फर्स्ट प्रोसेस सिर्फ यहाँ है कि यहाँ लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ लिमिट की बात है। तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आपके पास अनसर्टेनिटी कहाँ पर है, व्हेन योर लिमिट r इज इक्वल टू 1। तो इंडीड r इक्वल टू 1 इसलिए मेंशन नहीं है क्योंकि r इक्वल टू 1 के लिए आपके पास you have both the possibilities, means that you will have some series जिनके लिए आपको ये लिमिट 1 मिलेगी और वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, बट एट द सेम टाइम यू माइट हैव सम अदर सीरीज जिसकी ये रूट टेस्ट की लिमिट, रूट्स की लिमिट 1 होगी बट वो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। लेट्स लुक एट, वी हैव these examples here, and the first example is दिस सीरीज। एंड इस सीरीज का ऑलरेडी हमारे पास इन्फो है। वो इन्फो क्या है हमारे पास कि वी नो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। एंड दूसरी सीरीज जो मैं ले रहा हूँ, दूसरी सीरीज है ये आपके पास समेशन 1/n स्क्वायर,
तो समेशन 1/n² जो है, तो बाय पी टेस्ट वी नो दैट, क्योंकि पी आपके पास 2 है एंड वी नो दैट फ्रॉम पी टेस्ट के p ग्रेटर देन 1 के लिए आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होती है। तो इस केस में वी नो दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट। बट इन दोनों सीरीज, देखिए दोनों सीरीज का डिफरेंट बिहेवियर है, एक डाइवर्जेंट है एक कन्वर्जेंट है। बट दोनों सीरीज में जब आपके पास nth रूट्स की लिमिट आप फाइंड करते हैं वो 1 आती है। जैसे लिमिट ये देखिएगा, फर्स्ट सीरीज जो हार्मोनिक सीरीज है समेशन 1/n, इसकी लिमिट मैं फाइंड कर रहा हूँ nth टर्म्स की, क्योंकि इसमें nth टर्म क्या है, इसमें nth टर्म आपके पास 1/n है। तो 1/n की ये लिमिट आप 1/n टू पावर 1/n हमें फाइंड करनी है। तो दिस यू कैन राइट एज लिमिट 1/n टू पावर 1/n। तो अगर आप सिक्वेंसर से याद करें, यू नो दैट दिस लिमिट जो होती है n पावर n/n जो है, इट कन्वर्जेस टू 1 एज n गोज टू इंफिनिटी। तो हेंस ये आपके पास लिमिट 1/n टू पावर 1/n हैज टू बी 1। तो दैट मीन्स इस केस में जो आपके पास r है, r 1 है, बट आपकी सीरीज जो है सीरीज डाइवर्जेंट है। दूसरी सीरीज देखिए जो आपके पास समेशन 1/n² है, ये कन्वर्जेंट है एज आई ऑलरेडी सेड। तो इस केस में r की वैल्यू देखिएगा, इस केस में r की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट n, लिमिट ये आपके पास अगेन 1 आएगी। क्यों 1 आएगी, क्योंकि आपके पास n² 1/n, यू कैन राइट इट एज n 1/n होल स्क्वायर। तो ये लिमिट अंदर क्या है, एन 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 टू पावर 1/n की लिमिट 1 है, तो 1² हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी लिमिट भी 1 है। तो इन दोनों सीरीज में r इक्वल टू 1 है, तो बट एक सीरीज कन्वर्जेंट है एक डाइवर्जेंट है। इसीलिए ये टेस्ट जो है करोलरी 2 जो है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ कॉशी रूट टेस्ट, CRT, I will write it as Cauchy root test. Is sometime we might say that this test fails if R is equal to 1, and failure की justification आपके पास ये है, you have to give an example of a series which is convergent, and at the same time you have to give another example of a series which is divergent, but in both the cases your R is 1. Is it okay? Is it clear to all? Yes, sir. So this was all about root test. Okay. We have another test now that is known as a ratio test. रूट टेस्ट के नाम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए why it is called a root test, क्योंकि रूट्स लेते हैं हम यहाँ पर, तो इसीलिए रूट टेस्ट। तो रेशो टेस्ट में क्या होगा, रेशो टेस्ट में वी विल टेक द रेशोज, टर्म्स के रेशोज लेंगे। ये है जी आपके पास, ये रेशोज हैं आपके पास, तो उस स्टेटमेंट उसी के साथ मैच करेगी, बस आपके पास रूट की जगह पे रेशोज हम ले रहे हैं। और दूसरी जो चीज है, यहाँ पीछे हमने जो सीक्वेंस ली थी रूट टेस्ट में, here we are taking a sequence of non-zero real numbers। तो पीछे ये वर्ड नहीं यूज किया था हमने। तो नॉन जीरो रियल नंबर लेने का शायद इसलिए हमें जरूरत पड़ रही है, इसलिए जरूरत पड़ रही है, शायद वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप रेशोज ले रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में कोई टर्म रख रहे हैं अपना, तो इसलिए यू मस्ट हैव नॉन जीरो टर्म्स, क्योंकि जीरो टर्म्स के लिए यू कैन नॉट कीप zero in the denominator, that will be something that will give you something uh, undefined quantity. So what is the now the context? It has the same type of part A and part 2. In first part it says that suppose you have a real number, R, and that R is a real number which lies between 0 and 1. It should not be 0, it should not be equal to 1 also. And k is a natural number such that after k n greater than or equal to k, आपके पास ये रेशो जो है आपके पास टर्म्स का xn प्लस 1 अपॉन xn के जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, अगर ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी बाउंडेड बाय r है, तो उस केस में योर सीरीज समेशन xn इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है जी। तो दो चीजें ध्यान दें,
रूट टेस्ट में आपके पास नॉन जीरो नहीं होता है, नॉन जीरो टर्म्स नहीं है, तो वहाँ जीरो जीरो भी टर्म चल सकती हैं। और दूसरी वहां पर आर की वैल्यू हैज टू बी लेस देन वन, आर वहां जीरो भी हो सकता है, आर कैन बी जीरो एज वेल, ठीक है। तो बट यहाँ आर हैज टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो एंड लेस स्ट्रिक्टली लेस देन वन। तो तब अगर आपके पास रेशोज के जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो इफ दैट इज बाउंडेड बाय आर, तो योर सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एंड वेयर एज सिमिलरली, अगर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशोज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन हो जाती है, तो योर सीरीज इज गोइंग टू बी डाइवर्जेंट, ठीक है जी। तो इसका प्रूफ आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट्स प्रूफ बिकॉज इट्स नॉट अ बिग डील टू राइट इट्स प्रूफ। आपके पास एग्जैक्टली उसी लाइन पे आपके पास प्रूफ चलेगा, बट अगेन एज एज इन द केस ऑफ Cauchy root test, in case of ratio test also, this ratio test पूरा नाम इसका डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट बोला जाता है। डी एलेम्बर्ट इज सम मैथमेटिशियन, उसके नाम पे इसको टेस्ट को रखा गया। तो डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट बोला जाता है इसको, ठीक है। आपको ये दोनों टेस्ट बड़े अच्छे से याद रखने हैं। तो इसकी अनदर फॉर्म जो है, जैसे कॉशी रूट टेस्ट में था कि रूट्स की लिमिट फाइंड करते थे, तो यहाँ पर भी हम लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही हो, तो we will have test the convergence of series through limit। तो इट्स अगेन सेज कि आपके पास अगर ये रेशोज फॉर्म करो आप, xn प्लस वन अपॉन xn लिमिट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है आपके पास और इस लिमिट का वैल्यू r है, और फिर अगर ये r की वैल्यू लेस देन वन है, जीरो तो ये होगी नहीं क्योंकि आपके पास नॉन जीरो रियल नंबर है, तो इट विल नेवर बी जीरो। तो अगर r की वैल्यू लेस देन वन है, तो आपकी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, और आर की ग्रेटर देन वन है, स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन वन है, तो योर सीरीज इज डाइवर्जेंट। एंड अगेन इन दिस केस आल्सो द टेस्ट विल फेल व्हेन आर इज इक्वल टू वन। इसकी भी हम एग्जांपल देते हैं, लेट अस लुक एट द एग्जांपल। Again I have mentioned here the ratio test fails when the limit is 1. So why it is so? Let's look at this p series. You know this summation 1 upon n to power p, and हमें मालूम है कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज करती है, converges if p is greater than 1 and it diverges when p is less than equal to 1। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास p सीरीज। तो इसी p सीरीज की एग्जांपल लूंगा मैं। तो पहले p सीरीज के रेशोज फाइंड करते हैं। अब p सीरीज की जो nth टर्म है, व्हाट इज nth टर्म? nth टर्म ऑफ दिस p सीरीज इज 1 upon n to power p। सो xn plus 1 upon xn जो है, this has to be 1 upon n plus 1 to power p। तो upon 1 upon लिखने से बेहतर है कि I will write it as n to power p upon 1, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर आप करें, तो सिंप्लीफिकेशन से इट हैज टू बी n upon n plus 1 होल पावर p, ठीक है। या अगर इसको आप n कॉमन निकाल लें, तो डिनोमिनेटर से n कॉमन निकालें तो n नोमिनेटर से भी कैंसिल होगा, तो यू विल हैव 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n होल पावर p। तो ये टर्म आपके पास बचेगी। तो दिस गोज टू ये आपके पास इसका वैल्यू 1 हो जाता है। वाई इसका वैल्यू 1 हो जाता है? क्योंकि आपके पास लेट मी क्लियर दिस थिंग, यू सी, ये आपके पास ये चीज बच रही। तो आपके पास नोमिनेटर में क्या है? नोमिनेटर में है 1 अपॉन 1 n। पहले इसको देखिएगा। यू नो दैट दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1 एज n गोज टू इंफिनिटी। तो फिर इसका जो पावर है, पावर की जो सीक्वेंस है, इसकी पावर की सीक्वेंस कोई भी p ले लीजिएगा, इसके पावर की सीक्वेंस विल आल्सो कन्वर्ज टू 1 to power p, but 1 to power p is 1 as n tends to infinity। तो सारी की सारी टर्म्स आपके पास
सारी की सारी टर्म्स आपके पास पॉजिटिव है, तो यू कैन टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द सीक्वेंस। तो रेसिप्रोकल ऑफ द सीक्वेंस भी वन को कन्वर्ट करेगा, या वन के रेसिप्रोकल को, बट वन का रेसिप्रोकल वन है, तो हेंस ये आपके पास वन को कन्वर्ट करेगा। तो व्हाट इज दिस थिंग, व्हाट इट मींस, इट मींस दैट आपके पास पी सीरीज में 1/n⁴ पी सीरीज में जो ये लिमिट आपके पास आ रही है मॉड ऑफ xn प्लस 1/xn, पी की वैल्यू कुछ भी हो, इट डजंट डिपेंड अपॉन पी, तो दिस वैल्यू इज 1, तो दैट मीन्स आर आपके पास 1 है। तो आर आपके पास 1 आ रहा है, तो जब आप पी आपके पास फॉर एग्जांपल पी आप 1/2 ले लो, तो भी आर 1 है, तो पी इक्वल टू 1/2 के केस में तो सीरीज डाइवर्जेंट है ना, 1/2 इज डाइवर्जेंट, ठीक है। और अगर आप p इक्वल टू 2 ले लेते हो, तो 2 के केस में आपके पास जो सीरीज बनेगी 1/n² होगी, दिस इज कन्वर्जेंट। और इन दोनों सीरीज के केस में आपके पास जो आर आ रहा है वैल्यू आर की, तो वो आपके पास वैल्यू आर की इस सीरीज के केस में भी वैल्यू आर की 1 आ रही है, और इस सीरीज के केस में भी आपके पास वैल्यू 1 आ रही है। तो दोनों के केस में r इक्वल टू 1 है, बट बिहेवियर सीरीज का डेफिनेट नहीं है, कुछ सीरीज कन्वर्जेंट है, कुछ सीरीज डाइवर्जेंट है, तो इसीलिए द रेशियो टेस्ट विल फेल in case your limit is 1. Is it okay? Is it clear? यस सर। Somebody will respond. Any questions? सर Any जब question वन from? हाँ जी, हाँ जी। ये सर जब हमारे पास 1/n⁴ था, जब ये भी वन को ही कन्वर्ज कर रहा था, सो उस केस में हम इसको फिर डाइवर्जेंट कैसे कह सकते हैं? आई मीन जब ये वन को ही कन्वर्ज कर नहीं, रहा था। ये नहीं कन्वर्ज कर रहा वन को। When we say that ये नहीं वन को कन्वर्ज कर रहा है, इसके ये इसके कारस्पॉन्डिंग जो रेशोज की लिमिट फाइंड करी ना हमने, ये वाली लिमिट कन्वर्ज कर रही है वन को, xn+1/xn, ये लिमिट कन्वर्ज कर रही है वन को। क्योंकि सीरीज को टेस्ट करने के लिए हमें रेशोज की लिमिट फाइंड करनी पड़ती है ना, यही तो है ना रेशो टेस्ट को, सीरीज को टेस्ट करना है अगर आपने, तो व्हाट यू डू, आप उसकी सीरीज की टर्म्स के रेशोज फाइंड करो ना, ये रेशोज है, xn कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशो है ना, xn+1/xn। इस तरह से ये यस सर। सीक्वेंस बनेगी ना, पहली होगी x2/x1, y1 इसको रखो, y1 इसको रखो, y2 आपके पास दूसरी टर्म बनेगी x3/x2, फिर y3 आप रख लो x4/x3, इस तरह से यू विल गेट अस दिस सीक्वेंस। और अगर ये सीक्वेंस का लिमिट आपके पास r है और ये लिमिट लेस देन 1 है, तो योर सीरीज इज कन्वर्जेंट, दिस इज अ टेस्ट, ठीक है। वी आर नॉट सेइंग दैट सीरीज इज कन्वर्जिंग टू 1, क्योंकि सीरीज कन्वर्ज 1 को करेगी तो वो तो फिर टेस्ट की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो अंडरस्टूड है कि वो सीरीज जब कन्वर्ज है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ओके, एनी अदर? नो सर। देयर इज अ मोहम्मद आसिफ मलिक, उसने हाथ हैंड रेज किया था, इफ ही हैज एनी क्वेश्चन। आसिफ, you have any question? Is he in the class or he has left? Roll number 23. Okay, no issue. So if you तो do सर not have any, Anji,